both Hedgewaji and Golwalkarji must be very delighted and satisfied today. उन आरएसएस ने 100 साल कंप्लीट किए हैं इस साल। ये एक बहुत प्राइड का मूवमेंट है उनके लिए, जिस ऑर्गेनाइजेशन की उन्होंने नींव रखी। And they must be very satisfied, not only because they have completed 100 years, they have also acquired power. आज वो power center देश की। Not only that, they have also got the satisfaction today कि they have been able to reshape the Hindus in the manner जो उन्होंने सोचा, militant, inward looking, questioning loyalty to the ancient legacy of Hindus. And of course, उसका जो fallout होगा, dogmatic and conservative. Now today RSS can proudly claim to be the world's largest NGO, जिसका बहुत extensive network है, and you can have a look at the tree also. And all these organizations, 20-25 of them, they are all hand in glove. And together वो सारे जो हैं organization वो संघ परिवार कहलाया जाता है। And as a result, क्योंकि इतने सारे हैं, they are deeply engaged in political and cultural mobilization while still claiming कि वो apolitical है। हिंदू महासभा जैसे and RSS have always been hand in glove, and उन्होंने कभी मेंबरशिप का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा है ही नहीं। तो आज 4 मिलियन कहते हैं, लेकिन रिकॉर्ड कोई नहीं है। एंड एज ए रिजल्ट ये जो स्ट्रैटेजी है, इट हेल्प्स इन ग्रोइंग द ऑर्गेनाइजेशन। नाउ फ्रॉम इंसेप्शन, जब से बने हैं, द आरएसएस फोकस्ड ऑन हिंदू रिवाइवल एंड नॉट ओनली ऑन फ्रीडम। उनके जो फाउंडिंग फादर्स थे, दे प्लेस्ड टू डिफेंड रिलीजन एंड कल्चर एंड नॉट टू फाइट द ब्रिटिश। एज एन ऑर्गेनाइजेशन दे नेवर ओपोज द ब्रिटिश, लेकिन कंसिस्टेंटली ओपोज किया कांग्रेस को, विच वॉज लीडिंग द स्ट्रगल, बिकॉज दे फेल्ट दैट गांधी नेहरू आर टेकिंग अवे द हिंदूज फ्रॉम देयर फोल्ड। जैसा वो चाहते थे वैसा गांधी नेहरू हिंदुओं को नहीं बना रहे। सो द ब्रिटिश, they praised them for staying out of Gandhiji's civil disobedience movements and non-cooperation movements and Quit India. Hedgewarji reportedly joined the Dandi March, but barred the RSS cadres from participation. Now, even during Quit India movement, they did not participate. सावरकर जी जो हैं, उन्होंने even instruct किया हिंदू महासभा members को कि not to join. He wrote a letter, and even he wrote a letter to the Britishers that time, British government, that strict action must be taken जो participant हैं Quit India movement के और उनकी leadership के खिलाफ। Now their leaders wrote extensively about the casteism and its impact, उस पर लिखा बहुत है, लेकिन कभी भी उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया किसी भी, जैसे टेम्पल एंट्री मूवमेंट्स पे, लाइक काला राम मंदिर नासिक का दिस मूवमेंट सत्याग्रह वाज लॉन्च्ड बाय डॉक्टर अंबेडकर, तो उसमें भी हिस्सा नहीं लिया। और साउथ में जो टेम्पल एंट्री मूवमेंट्स हुए वाइको में, उसमें विच वाज सपोर्टेड बाय गांधी जी, उसमें भी नहीं लिया। और इवन एट महत सत्याग्रह, जिसमें पानी का इशू था in 1927, which was led by डॉक्टर अंबेडकर, उसमें भी हिस्सा नहीं लिया। बल्कि अगर हम प्रोब करेंगे, थोड़ा नीचे जाएंगे, तो देखेंगे कि वो लोग ओपोज भी कर रहे थे। Now this strategy overall allowed RSS to preserve its image. Now so many agencies, so it allowed cadres to operate on parallel fronts. Now you will find RSS cadre visibly, बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, working during natural calamity relief work में, and the same cadre would be participating in it's a parallel movement, and one would not know who is where and what is he doing. For instance, Nathuram Godse was both an RSS man and a Hindu Mahasabha member, but the mother organizations distanced themselves when he killed Gandhiji, portraying him as a lone actor. So it helps. So the mother organization, that is the RSS, remained legally untouched. You can't touch them. Now post-independence, there are many contradictions. आजादी से पहले तो ठीक है, you are under shell, your sole aim is Hinduism. But आजादी के बाद कुछ contradictions सामने,
जैसे आरएसएस रिजेक्टेड दी नेशनल फ्लैग ट्राइकर, डिमांडिंग के भगवा ध्वज होना, और कई वर्षों तक उन्होंने वो नेशनल फ्लैग होइस्ट ही नहीं किया अपने हेडक्वार्टर पर, अंटिल फ्यू एक्टिविस्ट वो 2001 में दे फोर्सिबली एंटर्ड आरएसएस हेडक्वार्टर एंड होइस्टेड दी। ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन को भी उन्होंने अपोज किया और कहा कि वो मनुस्मृति का उसमें मेंशन ही नहीं है, और उनके पेपर में आर्टिकल्स भी पब्लिश हुए कि मनु रूल्स आर हार्ड, ऑर्गेनाइजर में आर्टिकल है। सिमिलरली दे अपोज द हिंदू एक्ट, कोड एक्ट, एंड उसमें जो वुमेन के राइट्स उसमें मिलने थे उसको अपोज किया, एंड दे कॉल्ड इट एज अ एटम बॉम्ब on Hindu society. So after Gandhiji's death, assassination, again many issues came up, and Mr. Nehru called RSS activities as anti-national and on Nazi lines, describing RSS as having a private army. Now Sardar Patel ने भी बहुत criticize किया, उसके बाद Sardar Patel recorded that RSS men distributed tweets after Gandhiji's assassination, और उन्होंने describe किया कि उनके speeches जो थे leaders के, they were full of communal poison. He demanded that they adopt a democratic constitution, accept current tricolor को as a national flag. They should pledge loyalty to the Indian constitution and renounce secrecy and violence. और उसके लिए उन्होंने कहा कि वो अपने मेंबरशिप का रिकॉर्ड रखें, और छोटे बच्चे वो लेते हैं भर्ती करते हैं तो पेरेंट्स का परमिशन होना चाहिए। बट दिस वाज अ डेड लेटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। फाइनली गांधी जी का एसेसिनेशन जो था, वो स्टेन जो था, इट फोर्स्ड अ बैन, बट इमरजेंसी रिवाइव्ड आरएसएस एंड इट लेजिटिमाइज्ड इट्स पॉलिटिकल रोल फॉर द डिकेड्स अहेड। नाउ आरएसएस हैज एम्प्लॉयड टेक्निक्स, इफ यू रीड द नाजी you will find the techniques are very very similar. Now from 1970 onwards, at least जब मैं छोटा था तब से मैं कई नारे सुनता, हिंदूज खतरे में हैं, मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ रही है, नेहरू गांधी ने मिशन कराया, हमें गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा है, हिंदी जो है हमारी राजा होनी चाहिए, गाँव हमारी माता है, गांधी जी ने हमें आजादी नहीं दिलाई। ये सब नारे मैं बचपन से सुन रहा हूँ। अब रिलेंटलेस रिपीटिशन ऑफ ऑल दिस, ना आज वो सारे क्लेम मेन स्ट्रीम के बिलीफ बन गए। ये बिल्कुल दिस मिरर्स नाजी जर्मनी वेयर प्रोपेगेंडा इंटॉक्सिकेटेड द सोसाइटी सो डीपली दैट इवन साइंटिस्ट जो हैं दे वर ब्रांडेड एनिमीज ऑफ द स्टेट। फॉर एग्जांपल रिनाउंड साइंटिस्ट आइंस्टीन, ए जर्मन जीव, वाज ब्रांडेड एनिमी ऑफ द स्टेट। उनकी जो थ्योरी थी आइंस्टीन की, दे वर मॉक, उनके घर पे रेड पड़ी थी। फॉर्चुनेटली उस वक्त वो यूएसए में थे, and thereafter he never returned to Germany, otherwise the world would have lost such a great scientist. Can anyone see this parallel between Einstein and Sonam Wangchuk? I don't know, maybe you may not. The Indian society is fragmented today. सिर्फ रिलीजियस लाइंस पे नहीं, बट इवन ओवर लेगेसीज ऑफ गांधी जी, नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस जी एंड सावरकर जी, जिन पर्सनालिटीज को हमें प्रिजर्व करना चाहिए था एज शेयर्ड लेगेसीज, अनफॉर्चुनेटली हमने उन्हें पॉलिटिसाइज करके उनको, उनके कैरेक्टर को एसेसिनेट कर दिया। अब जब इंटॉक्सिकेशन इस लेवल पे पहुंच गया है तो समाज क्या, इवन फैमिलीज आर डिवाइडेड। अब हमारे पास रोल मॉडल कोई नहीं बचा है, उनका कैरेक्टर एसेसिनेट करके हमने उनको खत्म कर दिया है। उदाहरण के तौर पे पॉलिटिसाइज, जब आइडियोलॉजी को आप बढ़ाने के लिए आप सारे पर्सनालिटीज को पॉलिटिसाइज करते हो, तो सावरकर जी भी पॉलिटिसाइज हुए। तब पता लगा कि उन्होंने न्यूमरस टाइम्स ही हैड अप्लाइड फॉर मर्सी फ्रॉम जेल, और जब वो जेल से रिहा हुए तो 15-20 साल तक उन्होंने कोई मूवमेंट लीड नहीं किया अगेंस्ट ब्रिटिश, बल्कि उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हिंदूज और मुस्लिम्स को डिवाइड करने में। ना मोर इंपॉर्टेंटली आई वाज हिज फैन, और जो कहानी में हमने पढ़ा जिसने मेरे माइंड में एक इंप्रेशन छोड़ रखा था कि वो जहाज से कूदे ब्रिटिशर्स से बचने के लिए, एंड ही स्वैम फॉर माइल्स इन द ओशन, ठंडे पानी में, जबकि एक्चुअली में जब पढ़ा तो पता लगा कि वो शिप तो ऑलरेडी डॉक्ड था पोर्ट पे, फ्रेंच पोर्ट पे, वो सिर्फ ऊपर से कूदे और नीचे पकड़े गए। सो द फाउंडिंग फादर ऑफ संघ माइट बी फीलिंग वेरी सेटिस्फाइड टुडे, लेकिन इन व्यू ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड इन द कंट्री, आई एम श्योर इवन द आरएसएस वुड बी एट क्रॉस रोड्स, एंड दे नीड टू थिंक कि जो सब ये सब हो रहा है, विल दिस मेक इंडिया स्ट्रॉन्गर और वीकर? एज ए कॉमन मैन आई एम वॉचिंग इट। हाउएवर हिस्ट्री रिमाइंड करती है हमें कि बिटवीन 13 to 15 फरवरी 1945 ये जर्मन्स के लिए अवेकनिंग थी, क्योंकि एक
एलाइड एयरफोर्स के करीब 800 से 1000 एयरक्राफ्ट्स ने बॉम्बिंग की थी एक टाउन में ड्रेसडेन, उसको डिसिमेट कर दिया था, क्योंकि वो चाहते थे, एलाइज चाहते थे कि जो आंखों पे पट्टी बंधी है जर्मन्स के, वो खोल दें और उनको रियलाइज हो जर्मन्स को कि लड़ाई अब जो है उनके डोर स्टेप पे आ चुकी है। सो द रियल क्वेश्चन इज कि इंडिया की भी अवेकनिंग तब आएगी जब व्हेन सच ए मूवमेंट अराइव्स। द कॉमन मैन, आई एम इंटरेस्टेड टू नो एंड आई एम वॉचिंग इट। थैंक यू, जय हिंद।